Welcome, Anjali. Welcome to the Impactor shows, where we bring all the people who doing some value for the society. So today you are here with our viewers and in our podcast show. So once again, welcome. And I would like to ask you a few questions about your organization, about you, about the organization's vision. What is something which motivates you associating in the organization? So it will be very nice conversation. So yeah, let's begin. So my first question is, of course, about the journey of the organization, how the journey began, how the trust has reached to this level. So yeah. So, firstly, I would like to say a great thanks to the whole team of Impact and especially Nivedika, Sunita, and Manish. So, organizing such kind of great initiative is really very important for the organizations who are working for the social welfare. So, thank you for having me here. Thank you for giving me this opportunity. Okay, so I'll tell you about my journey, how it begins. As the name says, of my trust. My trust was started in the memory of my mother. It's wholly and solely dedicated to her. The good deeds or everything, every activity, every initiative we plan in this trust, we execute is for her, by her, and to her. So I'll say that since my very childhood, I've already always seen her doing some good deeds out of her own savings, keeping others happy, seeing that world of compassion and empathy since the very childhood had a place in my subconscious mind that someday I'll also do something like that. So so she passed on in 2015. Then I thought, let me start something. What she has begun, let me continue with that. So the seeds she sow, I thought, let me make it a tree, let me nurture it. So just I started this in her memory, Anju Devi ji, my mother's name. And उनके लिए मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ जो मैं आज बोलना चाहूंगी. माँ, आपकी दी हुई सीख और संस्कार को मैं प्रणाम करती हूँ. माँ, आपकी दी हुई सीख और संस्कार के लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ. आपके जाने के बाद भी आपको सहेज कर रख सकूं. आपके जाने के बाद भी आपको सहेज कर रख सकूं, इसीलिए यह जन सेवा आपके नाम करती हूँ. That's so touching, inspirational. Really. Thank you so much for bringing this. It's really inspirational. Thank you. Actually, what happened? मेरे माइंड में एक इंसिडेंट बैठ गया था. What happened एक बार she used to give her help, extend her support to everybody around her. She was not a working woman, I'll say, but उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी वो मुझे लगता है दूसरों को दे देती थी. तो वन डे व्हाट हैपेंड, मेरी एक हाउस होल्ड मेड थी. शी केम टू हर कि मेरी दो बेटियां हैं, मुझे गांव में जाके उनकी शादियां करनी है. तो माय मम्मा वाज ओके. जितनी भी उनके पास सेविंग्स थी, दैट वाज रियली अ वेरी गुड बिग हैंडसम अमाउंट. शी जस्ट ब्रॉट दैट अमाउंट और उनके हाथ में हैंड ओवर कर दिया, बीइंग अनअवेयर कि वो हाउस मेड वापस आएगी भी नहीं आएगी हमारे घर पे काम करने. She gave all her saris, lehengas, possible jewelries and all the amount she had at that point of time. तो वो इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक जगह बैठा दी कि आई थिंक दिस इज अ रियल वे ऑफ लिविंग द लाइफ. मतलब लोग खुद के लिए तो सभी कर रहे हैं, बट सीइंग हर कि मतलब शी वाज नॉट दैट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, बट स्टिल व्हाटएवर शी होल्ड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, शी जस्ट गिव टू हर कि उनकी हैप्पीनेस, उनका मोमेंट अच्छा होना चाहिए, उनकी बेटियों की शादी एक संपूर्ण तरीके से हो जानी चाहिए. So yeah, that inspired me always and always again and again. Yeah, that's called real richness. दुनिया में बहुत रिच होते हैं, बट इस तरह की richness किसी के पास नहीं. So when you decided to devote yourself in the organization, when you felt like, of course, you said that from the day when she has been the inspiration for you, but where was that point where you felt, okay, now I'm going to take care of everything? So see, I was seeing such incidents from my childhood, as I mentioned before. But what happened कि तब आप बच्चे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, that time you cannot make such decisions. Yes. But after she has gone, in 2015, she was gone with this fatal disease, cancer. So that time I realized कि अब मेरी लाइफ में कुछ तो भी बहुत बड़ी कमी हो गई है.
So to fulfill that incompleteness, I decided at that particular moment, obviously after setting, after 6 months, I'll say, of our demise, I thought that I will be forming such organization in her name and doing some good possible. I'll give community को मैं जिससे थोड़ा बहुत भी वापस दे पाऊँ जो एक पंता ले रहे हैं. So just I started after her demise. 6 months के बाद I formed this organization and we started doing all these activities by that. So अभी आप डेडिकेटली जयपुर में ही फंक्शनल है, वहाँ पर ही सर्व कर रहे हैं? Yes, as of now we are dedicatedly working in Jaipur, but we अब जो मेरा next अभी vision हम discuss भी करने वाले हैं आगे, उसमें हम लोग जयपुर से बाहर भी जाने का सोच रहे हैं. In fact, we have teams outside Jaipur also, but the projects जो हमने अभी execute किए वो particularly जयपुर में ही किया है. So अभी तक बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम करते हो. So अभी तक क्या कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स और कितने लाइफ को इम्पैक्ट किया है? एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? डेफिनेटली. सो मैंने अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है, हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं बोलूंगी अपना स्टार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन. तो वहाँ पे मतलब बच्चे थे. HIV इज समथिंग जिसका स्टिग्मा ये नो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग है. उन बच्चों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता. मुझे लगता है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट से ज्यादा एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है. उनको एक अपनापन चाहिए होता है, एक फैमिली चाहिए होती है जो उनके साथ रह सके, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके, उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके. तो देयर वी डिसाइडेड टू वर्क अपॉन दीज चिल्ड्रन. मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था हमारे जयपुर में जगतपुरा में बच्चे हैं 60, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज HIV. वहाँ पे हमने उन लोगों के साथ काम किया, अभी भी कर रहे हैं. तो वहाँ पे उनके एजुकेशन पे, उनके नरिशमेंट पे, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे, प्लस अब जाके जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पे, सब चीजों पे वर्क कर रहे हैं हम लोग. सेकेंड, वी आर वर्किंग अपॉन द कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन. इसमें अभी तक हमने 10+ सर्जरी करा चुके हैं हम. It's particularly we are working on the disease called retinoblastoma. ये एक आईज का कैंसर होता है जिसमें बच्चे के आईज से जाके वो स्प्रेड हो जाता है ब्रेन में. एंड इनफैक्ट ये होता है 6 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चों में. तब तक बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैं इस अर्थ पे आ भी गया हूँ, मेरे साथ ये चीजें हो रही है, what is this all. So we are not just working on the treatment, we are working on the awareness of this disease as well. क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको इतना इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते. हमारे साथ इसमें एक टीम एसोसिएटेड है विच इज फ्रॉम टाटा मेमोरियल, हु इज डेडिकेटेडली वर्किंग विद अस. वो अपनी फ्री सर्जरीज, फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं उनको. तो अभी तक हमने 10+ सर्जरी कर चुके हैं, आगे भी हम करते रहेंगे इसमें. प्लस इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सर्जरीज करते हैं दैट्स वाया OAC, दैट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्फ्यूजन. इट इज अ ट्रीटमेंट विदाउट एनी कट और स्कार. यहाँ पे वो बस एक इंजेक्शन से आर्टरी में आपके कीमो इन्फ्यूज करते हैं एंड द चाइल्ड इज सेव्ड. तो बहुत लोगों की अभी तक हमने जितनी भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उनके बहुत, किसी की फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग हो चुकी है, तो किसी के तो बिल्कुल ही कैंसर एलिमिनेट हो चुका है बॉडी से, किसी का भी चल रहा है ट्रीटमेंट. तो या वी आर वर्किंग अपॉन दिस. थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी आर डूइंग करंटली इज संपूर्ण पोषण प्रोग्राम. ये हम काम कर रहे हैं कच्ची बस्ती में जो बच्चे होते हैं उनके लिए. आज हम कच्ची बस्ती में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे पानी नहीं है पीने को, खाना वो जो खा रहे हैं बिल्कुल उसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है. तो वी जस्ट सॉ कि ये बच्चे कैसे घूम रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राइट माइंडसेट से पहले भी उनको राइट न्यूट्रिशन देना. अगर आप राइट न्यूट्रिशन दोगे तब तो वो जिएंगे. तो उनको जीने के लिए हम उनको जो भी उनके बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं वहाँ पे. साथ में हम उसके मिड डे मील प्रोग्राम चला रहे हैं. तो हम उनको जो मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हम जाके उनको दे रहे हैं मील्स. वी आर गिविंग एजुकेशनल प्रेमाइसेस, वहां हम उनको मील्स दे रहे हैं. तो इट्स सर्विंग डुअल पर्पस देयर कि बच्चे, मतलब इन लोगों के जो भी पेरेंट्स होते हैं स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के, वो दे हैव अ मेंटालिटी कि वहां पे अगर खाना मिल रहा है तो मैं अपने बच्चे को भेज देता हूँ. एजुकेशन तो उनके लिए फिर बाय प्रोडक्ट हो गई. तो वी आर वर्किंग अपॉन मिड डे मील एज वेल एज एजुकेशन वाया दिस प्रोग्राम ऑफ संपूर्ण पोषण. अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग. बिकॉज इतनी सारी चीजें करना कि कैंसर जैसे ट्रीटमेंट पे वर्क करना, देन एजुकेशन, मिड डे मील. सो हाउ यू हैंडल एवरीथिंग लाइक? So I'll say by God's grace and by my mama's blessings. These are the two things which keep me going. Everything has a cost. So आपका
how the financials works. See, I feel that whenever you are working towards your sole purpose, तो things get automatically aligned. Yes. मुझे एक तो सबसे बड़ी चीज ये लगती है, जी. अगर आपने मतलब आज कुछ ठाना है तो वो होकर रहेगा अगर आप सच्चे दिल से उसको करते हो. तो वो बोलते हैं ना, पूरी कायनात उसको कराने में लग जाती है. तो दैट इज हैपनिंग विद मी. True that. मैं अपनी जॉब में थी, देन आई स्टार्टेड दिस एनजीओ, बट मुझे लगता था कि इट नीड्स मोर टाइम, मोर अटेंशन, मोर एफर्ट्स. सो आई जस्ट ड्रोव माई सेल्फ इनटू इट. बट ऐसा नहीं था कि आई वॉज अलोन हैविंग दैट इंटेंशन. मेरे साथ जो मेरी सोसाइटी थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी दीज डेज. मुझे लगता है सबके कहीं ना कहीं माइंडसेट में होता है कि हाँ, हमें भी कुछ portion of our savings or earnings we have to devote to our society. So I just created the awareness. मैंने campaigns organize करे, social media पे posting start करी. तो मेरे जितने भी society के लोग, community के लोग who were willing to do such kind of deeds, जो वाकई में दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे थे, they just joined me. They came as a right workforce to me. उन लोगों ने अपना financially, morally, emotionally, physically हर तरह का मुझे support provide किया और अभी भी कर रहे हैं. तो बस उसी से मतलब चीजें चलती जा रही हैं. और मुझे लगता है अभी भी जैसे मैं कुछ मैं या मेरी ऑर्गेनाइजर या मेरी टीम कुछ विश करती है कि हमें इन चीजों पे काम करना है. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर थिंग्स गेट वर्क. अपने आप डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप चीजें बनती जाती है. पाथ मतलब मुझे लगता है भगवान खुद बना देते हैं. तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू सोसाइटी, फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स एंड इनफैक्ट आई विल से इम्पैक्ट. बहुत सपोर्ट किया है इम्पैक्ट ने भी. मतलब हमेशा आई थिंक इट्स लाइक समवेयर अराउंड 1.5 years हम लोग साथ में एसोसिएटेड हैं. तो इम्पैक्ट हैज आल्सो गिवन इट्स huge helping hand to us in the promotions, in marketing, in carrying our cause और लोगों तक, राइट लोगों तक उसको पहुंचाने में बहुत मदद की है. तो बस चीजें ऐसे एग्जीक्यूट हो जाती हैं. मुझे लगता है कि इम्पैक्ट इज ऑल्सो डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क. Not on ground level but on upper level में बोलूंगी तो you must be having the same aura, you must be having the feel of same energy. लगता है you also should be thinking कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है, and then somewhere कोई ना कोई कैसे ना कैसे आके आपका वो सपोर्ट कर जाता होगा. I can feel that. तो whenever you have good intentions तो मुझे लगता है चीजें एग्जीक्यूट हो जाती है, ऑटो मोड पे चलती है, चलता रहता है. हाँ. काम रुकता नहीं है. आप मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान का काम कर रहे हो. नाउ इट्स ऑन भगवान कि वो उस चीज को कैसे हैंडल करके कैसे एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं. तो आई जस्ट लीव दीस थिंग्स ऑन हिम. To that. So now coming to another point, so you talked about child welfare, like whatever the activities you are doing for the children's. Now, how about women? Like how the women empowerment and associated with women work? So, see, मैं बोलूँगी किसी भी चीज के दो इम्पैक्ट होता है. एक तो आप जो अपनी जनरल कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहे हो, एक जो हमारा अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है हम उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं. अगर मैं अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप की बात करूँ तो वहां पे हम विमेन इन्फेंटिसाइड, विमेन सैनिटेशन, विमेन आज जो उनका पोस्टमार्टम डीलिंग होती है वहां पे, अगर हम स्लम्स में या अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप की बात करें, दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल टू हैंडल. मतलब लेडीज कीप ऑन ब्लीडिंग एंड nobody is there to hear. They do not know how to handle that. They do not know how to handle it medically. But I think that by making them aware, by providing them a right medical kit, by giving them a right knowledge, we can make that system more organized. वहाँ पे जो भी विमेन रह रहे हैं उनका अगर आज हम सैनिटेशन, और अगर सबसे पहले मैं ये चीज बोलूंगी, अगर हम उनका विमेन इन्फेंटिसाइड को कंट्रोल करेंगे तो बहुत आगे जाके चीजें बढ़ेंगी. मतलब ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द प्रताप नगर स्लम एरिया. वहां पे हम डील कर रहे हैं इन सब चीजों से, एंड वी हैव सीन अ रियली इम्प्रूवमेंट इन द थिंकिंग ऑफ विमेन. और वो थिंकिंग मुझे लगता है विमेन तक नहीं रहती. विमेन अल्टीमेटली नर्चर कर रही है अपने चाइल्ड को, तो वो somehow that is flowing to children as well. Into marriage also हम लोगों ने बहुत सारी विमेन की मैरिजेस कराई है, कुछ को एम्प्लॉयमेंट दिया है, कुछ को उनके हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट दिया है कि कैसे कैसे इस चीजों को डील करना है. प्लस हमने स्लम्स में प्रॉपर एक कैंपेन्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करवा रहे हैं हम लोग. विमेन इन्फेंटिसाइड पे वर्क कर रहे हैं. इसके अलावा मैं बोलूंगी कि आज हमारी जैसी कम्युनिटी की जो विमेन है, अब जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए, तो वो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो वो भी विमेन एम्पावरमेंट का दूसरा डेफिनेशन है. तो इट इज गिविंग डुअल साइड इफेक्ट.
कि लोअर कम्युनिटी पे भी इसका काम चल रहा है और आज हमारी जैसी कम्युनिटी पे भी इस पे काम हो रहा है। प्लस इसके साथ में हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी रन कर रहे हैं विच इज मोर फोकस्ड ऑन स्विंग, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी, ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स आर बीइंग गिवन टू वुमेन इन स्लम्स, जिससे क्या वो आज इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। वो अगर चाहें कि मेरे हस्बैंड्स नहीं अर्न कर पा रहे या दे आर नॉट properly trained या husbands है ही नहीं, तो they can run their family and they can be more independent and more powered at any point of time. You know, the most beautiful thing what I liked, I always carry this perspective, like if you want to help someone, so just don't what you call it, spoon feed them, make them independent. So this is what actually. I have understood, that you are not just helping ki, hey, you have a problem, take my help. You're making them stand their own feet. It's like ki, helping is that ki, make them stand, because one day you will feed them, second day you will feed them, third day they have to feed themselves, otherwise they will get lazy. They'll be like dependent ki, okay, ma'am will come and she feed me. But this is exactly not. I totally stand second you. मतलब मेरा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस पॉइंट रहता है, दैट्स ऑन रूट कॉज, दैट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। एक्चुअली हम लोगों ने स्लम्स पे काम करने का कभी सोचा ही नहीं था, बट मुझे लगता है कि स्लम्स भी एक रूट कॉज है हमारी सोसाइटी को पीछे ले जाने में, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकने में। तो हम लोग रूट कॉज ढूंढते ढूंढते ही स्लम्स पे पहुंचे थे कि एक्चुअली अगर आप, जैसे कि आपने बोला कि उनको आप राइट माइंडसेट या राइट नॉलेज या राइट एजुकेशन दोगे, तो शायद हमें उनको रोज ले जाके खाना, कपड़ा और सामान देना ही ना पड़े, वो खुद भी अर्न कर सकते हैं। True. I'm so liking this conversation. So liking it. Same here. So I'm coming to, there are so many things to cover. Heard a lot about you from your team members. Now first time interacting with you, seeing the bold face behind Impact Idea. It's like my fortune today. Thank you so much. So I'll talk about the technology also. Like, so what's your thought? Like when you say that there are so many things to do. Okay, you're already doing many things, but still there are limitations. Okay, when you say about slum, when you say about child, it's not just limited to Jaipur and one location. If we are truly want to help people, so everywhere where they need us, we should be there. So what do you feel that where technology can bring and help to reach more people, add more values? So what's your thought about it? आज अगर ये नॉन प्रॉफिट है तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इक्वली यूटिलाइजेशन है, इसको हम यूज करके मास को रीच कर सकते हैं। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, आज मैं स्लम में एक डेडिकेटेड, मैं जयपुर की एक कच्ची बस्ती में पढ़ा रही हूँ, बट इफ आई हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो मैं मल्टीपल चिल्ड्रन को एक साथ कवर कर सकती हूँ। मुझे जो उनको मैसेज देना है मैं एक साथ दे सकती हूँ। मैं अपने स्टाफ को या मैं जो अपने टीम को है, अभी मैं जयपुर सेंट्रिक रख सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास राइट टेक्नोलॉजी है तो मैं शायद इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा सकती हूँ। मेरे साथ कोई भी अगर विलिंगली काम करना चाहेगा तो वो इंडिया के बाहर या इंडिया में कहीं पे भी हो, वो जुड़ सकता है। टेक्निकली मे बी फिजिकली दे आर ऑलरेडी कमिटेड समवेयर, उनको लगता है कि मेरा यहाँ ऑफिस है या कुछ चीज है, but technically they can be a part of these all contributions towards society. Yes. साथ में मैं बोलूंगी कि आज हमारा फंड मैनेजमेंट हो जाता है, असेट मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, मतलब कुछ भी चीज आप देखो तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इज मस्ट। आज हमको अवेयरनेस फैलानी है, कुछ भी कैंपेन्स करने हैं, व्हाट वी विल डू टू पिक द राइट डोनर्स, टू पिक द राइट डोनीज। digitalization plays a very very important role. As you mentioned ki awareness, because what I feel ki we'll talk about this also, because when you talk about medical, I came across some points where there are many people who in form of, because we have to talk, okay, we cannot neglect this point, the people are misusing also such thing. When I go for walk, you see many, I don't know, maybe Jaipur these things, but in Bangalore when I go for walk, there are girls who are standing and they will just ask you, okay, this child is suffering something, and immediately help. And I'm sure when I start doing cross question and when I say that I also belong to a organization, then they get conscious and they leave. So you can say there are so many things which is fishy happening. Okay, so when you say, no, people wants to help, people wants to, it's like me as individual, you as individual, no matter how much I'm earning, there is a feeling of giving. So what you have to talk about this, because this is what I understood ki technology is important, because right people should come up, because wrong comes up, they mislead
individuals and individual get conscious, because every's money, even it is money or the help is important. It's not free, okay? Even though somebody is volunteering also, they are taking some time and doing, and when they get to know ki something is fishy is happening, so they just get, oh, nothing is good, and they judge everybody. So what you have to talk about this, because it's very important, and we exactly. So अभी मैं बोलूंगी कि इसीलिए शायद हमारे मोदी जी ने अभी बहुत सारे इम्पोजिशंस भी लगा दिए हैं, तो स्ट्रिक्टनेस, और मैं बोलूंगी जितनी रिस्ट्रिक्शंस अभी एनजीओ पे आ गई है, तो जस्ट दैट टू वाउच दैट वेदर जो चीजें वर्कआउट हो रही है वो लेजिटिमेट है या नहीं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सबकी एक हार्ड अर्न मनी होती है, वो अपनी फैमिली को नहीं देके या अपने कुछ पार्ट ऑफ अर्निंग्स में से किसी को देना चाह रहे हैं, तो दे वुड ऑलवेज बी अश्योर्ड होना जरूरी है कि ये सही जगह पे सही लोगों के लिए यूटिलाइजेशन हो। तो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि आपको एक राइट फॉरम के साथ जुड़ना चाहिए इस चीज के लिए, तो विच इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आज हम जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या जिन भी लोगों पे काम करना स्टार्ट करें, उसको इन एंड आउट पूरी स्टडी करें, रिसर्च करें, बैकग्राउंड चेक करें, उसका पूरी वाउचिंग करें प्रॉपर कि वाकई में ये लोग डिजर्व करते हैं हमारी हेल्प, और इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे अगर हम इनको हेल्प करते हैं और अगर नहीं करते हैं, दोनों तरीके से। I'm coming up, it's a follow-up question. So how individual check? Because when I talk about donors, they say, see, because nowadays everything is digital. For example, I'm sitting in Bangalore and I'm from Jaipur. Definitely, there's a options. I want to help any NGO or anybody who is working for child welfare. So I'll definitely go and Google. Okay. So nowadays, because the kind of these scammings are very mature, okay, they will be having very nice website and everything, but it's still what is happening inside no one can know. So what's your intake, because this is such a problem I have even seen individually. They should so देखिए, अगर आपके near और dear या कोई close ones में somebody is doing this kind of work, then definitely you can just go and vouch things physically, या you can check on their accounts. See, everything is vouchable and auditable. ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है कि अगर आप वाकई में अगर आप कहीं डोनेशन दे रहे हैं, then you can ask for a follow up check कि मुझे आप इसकी रिसिप्ट दे दीजिए, मुझे उसका राइट कंफर्मेशन दे दीजिए कि मेरे फंड सही जगह लगे, बिकॉज आई डू दैट। मेरे साथ मेरी चाहे फैमिली वंस भी अगर मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई विल शेयर देम अ प्रूफ, मैं अपना रिसिप्ट का, एक्सपेंस का, कहाँ वो मनी गई, किसके लिए यूटिलाइजेशन है कराई, इनफैक्ट मैं जहाँ वो पैसा जाता है मैं उनसे थैंक्स भी बुलवाती हूँ कि आप राइट पर्सन को बोलिए कि दे मस्ट बी नोइंग कि आपका पैसा कहाँ और किसके लिए किस तरह से काम आया। नाउ वी कैन ज्वाइन, लाइक मैं जैसे बताती हूँ, इम्पैक्ट है आपका पोर्टल, तो पीपल नो दैट इट्स क्वाइट लेजिटिमेट, इतनी बड़ी चेन बनी हुई है, देयर आर एन नंबर ऑफ एनजीओज हु आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद इम्पैक्ट, सो पीपल शुड गो एंड चेक सच फोरम्स, मैं बोलूंगी, रेदर देन चेकिंग ऑन इंडिविजुअल एनजीओज, then they can reach out to impact and say कि मुझे जीव दया में काम करना है, मुझे बच्चों के ऊपर देना है, आज मुझे इस पे करना है, तो they can just, they will have to poke और check on a single platform, impact या ऐसे similar जो platforms हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, they need not to vouch individual organizations, so that's also another way of funding. And you mentioned कि and in fact इसमें मैं बोलूँगी लोगों के पास options है, जैसे आज मेरे साथ होता है कि somebody वो says कि मुझे आज गायों को खाना खिलाना है, आज ये दिन है, अपने इंडिया में ये सब चीजें रिचुअल्स बहुत मानते हैं लोग, तो यू ऑन सच फोरम्स लाइक इम्पैक्ट वी डू हैव मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, मुझे आज इनको देना है या मुझे आज बच्चों के लिए देना है या लेडीज के लिए देना है या कैंसर में देना है, तो यू कैन चूज कि मुझे किस सेक्टर में आज लोगों को डोनेट करना है, सर्व करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू। वहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, यू जस्ट कैन चेक कि ये ऑर्गेनाइजेशंस रियली वर्क कर रही है, क्योंकि इम्पैक्ट उन्हीं को ऐड करेंगे जो वाकई में काम कर रहे हैं। So actually the major vision is this only, to create a trustworthy platform which is driven by public only, and as you mentioned ki when you get the donation or for NGO perspective, it's your responsibility to update them ki hey, this is where your money is getting utilizing, and we are creating that platform also ki automatically the update should go to the donors so that they get the sense of confidence, because it just multiplies. They even, for example, if as you mentioned कि गौशाला में भी अगर कोई 100 रुपए देता है और देखता है कि खा रही है, तो अपने आप ही एक इंतुजियाज्म आता है कि चलो 200 दे दे, चलो 500 दे दे, अपने आप ही एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा मैंने यहाँ पैसे दिए, और वो अपने आप एक प्राइड में कन्वर्ट हो जाता है
वो जो अगर आप देखते हैं ना कि अरे वाह मेरी वजह से आज ये गाय खा पा रहे हैं, या मतलब ये बच्चे कुछ खा पा रहे हैं, कुछ ले पा रहे हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी इमेंस सेटिस्फेक्शन एंड प्राइड फीलिंग. सो अगर हम उनको शेयर करते हैं, इतना ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो दैट्स रियली वेरी वेरी गुड. True that. So, Abhi, bringing to the next question, where I want to talk about challenges. So, where you, of course, every organization, everything has a challenge involved. So, what's the major challenge you face? So, I'll say that challenges, तो मतलब actually this is not a work of profession. मैं बोलूँगी this is not a work driven by profession. It's more driven by your passion. तो चैलेंजेस जैसा तो मतलब कुछ लगता नहीं, आई डोंट नो, आते होंगे, मुझे लगता है वो पुश बटन्स होता है चैलेंजेस. वो आपको एक बार आप किसी चैलेंज को क्रॉस कर लेते हैं, देन यू सी अरे मैं तो जंप करके उसको आगे आ गई. तो आई फील दैट पर्सनली इन केस ऑफ माय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस नहीं होते, वो पुश बटन से होते हैं, वो आपको आगे लेके जाते हैं. बट अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की इस सेक्टर में, तो व्हाट आई हैव फेस्ड इनिशियली, मेरे को जैसे कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज अ मेजर चैलेंज वन फेसेस व्हेन दे स्टार्ट डूइंग सच एक्टिविटीज. मुझे लगता है मैं कहाँ किस सब्जेक्ट पे काम करूँ और कहाँ किस सेक्टर में काम करूँ कि मेरा जो मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प भी कर पाऊँ, और लेकिन मैं सही लोगों के लिए काम कर पाऊँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि आज हम हेल्प तो कर रहे हैं, मैं इतने लोगों से उनकी हेल्प मांगने जा रही हूँ, लेकिन क्या हम सही लोगों के लिए कर रहे हैं. तो दैट वाज रियली वन चैलेंज जब मैंने अपना स्टार्ट किया था कि मुझे किसके लिए काम करना है. सेकंड मैं बोलूंगी कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरे फैमिली में कोई बैकग्राउंड था जिन्होंने, मतलब माय मदर हैज डन सच एक्टिविटीज, बट एक फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह आई हैव इनिशिएटेड द थिंग्स. सो तब मुझे थोड़ा सा एक डर लगा था कि कैसे चीजें एग्जीक्यूट होंगी, कहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगा, लाइक द फाइनेंस सपोर्ट यू मेंशन्ड इन बिफोर क्वेश्चन बिफोर, चाहे मैं फिजिकल सपोर्ट मानूं कि मैं कहाँ कैसे चीजें एग्जीक्यूट हो पाएंगी. सो दैट गाइडेंस एंड सपोर्ट दैट वाज मिसिंग इन माय अर्लियर स्टेज. थर्ड वन जो एक विमेन के साथ हमेशा होता है, ऑलरेडी यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर वर्क, एंड दिस सोशल सर्विस इज थर्ड थिंग कमिंग इनटू योर टाइम. सो वो रेशियो और टाइम का अलाइनमेंट एक उसको फिगर आउट करना, दैट वाज आल्सो अ बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड इन बिगिनिंग. तो बट नाउ थिंग्स आर वेरी सेट राइट. मुझे लगता है कि आई एम क्वाइट क्लियर विद माई अप्रोच विद द टाइम. और अब जब आपके पास, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, बट आई वुड से कि मेरे पास सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला इस चीज में. सबसे मैंने नहीं सोचा था उससे ज्यादा, और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे भी आ जाऊंगी इस जर्नी में, तो वो शायद सबके सपोर्ट से ही है. तो जो बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सबका सपोर्ट के साथ सब चीजें ऑटोमेटिकली होती गई एंड थिंग्स आर हियर नाउ. तो चैलेंजेस तो आपके मोटिवेशन से और आपकी परसिस्टेंस से, आपकी फोरसाइटेडनेस से, अगर आप किसी भी चीज में गोल सोच के बैठे हैं कि मुझे अचीव करना है, तो challenges are very very small things, they cannot stop you. Just go and cross, डर के आगे ही जीत है. So I had a follow-up question, this only being woman and of course family, so कैसे handle होता है, but you already answered it. You also must be knowing that you are also doing all the same things, but still definitely मैं थोड़ा ground. Family support, like if your family is supporting you, admiring you, and like is there कि hey go ahead, I'm here for you, so that's the big power. So बिल्कुल सही बोला आपने. थोड़ा इनिशियली मैंने बोला कि जब मैं जॉब में थी तब आई स्टार्टेड माय एनजीओ, तब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा हो रहा था, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कमिटेड टूवर्ड्स वन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपके 8 या 9 आवर्स ऑफ अ डे आर रिक्वायर्ड. जैसे जैसे मुझे लगता है जिस चीज ने जितनी डिमांड मांगी, आई जस्ट फ्लो, मतलब मैं फ्लो में चलती गई, और मुझे लगता है आवर्स मेरे अपने आप अलाइन होते गए इन चीजों से. मुझे लगा कि यहाँ आवर्स मेरे अब ज्यादा मांग रहे हैं, यहाँ कम. तो स्टार्टिंग में तो मैंने अपने, मतलब इनफैक्ट मैं बात बताऊं तो मैंने अपने जॉब में अपने मैनेजर से भी बात की थी, एंड दे आल्सो सेड कि अच्छा आप ऐसा कुछ कर रहे हो. तो उन्होंने इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करा, बट अब मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ तो मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ. दे गेव मी अ रिलैक्सेशन टाइम कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे लॉग इन आके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो. लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पूरा दिन भी देना पड़ गया कई बार, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहाँ आप दिन से रात और रात से दिन भी लगे रहोगे तो वो कमी है. यहाँ कुछ आपका बॉर्डर्स नहीं है, मैं बोलूंगी इस काम में. तो थिंग्स मैंने जैसे जॉब में कंटिन्यू किया, फिर आई टॉक टू माय मैनेजर्स, दे गिव मी अ रिलैक्सेशन टाइम कि आप करो. बट फिर मुझे लगा कि अब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, सही बताऊं तो इस चीज में मेरा इंटरेस्ट वहां ज्यादा बढ़ गया है.
मुझे वहां मजा आ रहा है करने में, लोगों को कुछ कर, मुझे लगता है कि मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अंजलि जैन से समाज सेवी अंजलि जैन सुनने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है जो मैं आजकल सुन रही हूँ। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे वहां से एग्जिट होके, बट आई नेवर से एनीबडी टू गिव अप ऑन देयर करियर, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा होती है जब भी आप एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो। तो आई जस्ट स्टार्टेड माई ओन बिजनेस कि मेरे पास एक टाइम का रिलैक्सेशन भी रहे, मैं अपनी चीजें भी कंटिन्यू कर सकूं और साथ में मैं अपनी सोशल सर्विस कर सकूं। You added very nice point where you mentioned ki those who, like, because I have seen being women, when you see your friends and all, they feel like, oh, you are doing, you quit your job, I will also do. So I have also one thing to say ki hey, it's not like that. If you really want to do it, you don't do it because somebody else is doing, okay? So it should be solely your call because it is going to be challenging. And वो challenges वे जैसे आपने बोला ना कि just a call, वो तभी लगेगा जब you really want to do. Otherwise then you're like, oh, this is happening, I didn't know. And नहीं, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओगे। जैसे कई बार होता है कि somebody needs a support, then if you do not have any of your donors around you, तो ultimately you are the one who is going to support, क्योंकि आपने ये जिम्मा लिया है अपने कंधों पे। तो मुझे लगता है कि आपके करियर को गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन। डेफिनेटली यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि मुझे किस चीज में कितना रेशियो अपने दिन का देना है, और अगर मैं इस चीज में इतना बढ़ती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पे लोग जॉब करके भी जुड़ पा रहे हैं साथ में, मतलब दे आर कंटिन्यूइंग देयर करियर इन जॉब्स और साथ में वो ये भी कर रहे हैं, सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। तो अगेन इट्स अप टू यू कि मैं कितना टाइम और किस तरह का काम करना चाहती हूँ। इट इज योर कॉल। मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करना था, बहुत सारा काम करना था, सो आई टुक दिस कॉल। बट अगेन आई एम ऑल्सो अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सोशल सर्विस में होके अपना वो मैंने अपना करियर को गिव अप कर दिया, बट आई हैव जस्ट मोल्डेड एंड क्राफ्टेड माय करियर दैट वे कि मेरे लिए मेरी सोशल सर्विस भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, particularly balance is very important. Balancing is very important. So what's your message and what you want to say for this generation? How any message that how they should, if somebody wants to start this social service journey, or the message to motivate people that they should think about this also, because future needs people like us. So we have to of course bring new, as you mentioned ki for your children also you teach them this way ki they also, when they are helped, they should also learn helping others. So what do you have to say about the future generation? मुझे लगता है कि कोरोना का जो टाइम आया था उसके बाद सबकी मेंटालिटी में थोड़ा चेंज हुआ है। सबको लगता है कि ठीक है, जो रहना है वो यहीं रह जाना है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छे काम करके जाएं जब भी हमें जाना है। तो मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, चाहे वो अपने करियर को लेके हो, चाहे वो अपने डिसीजंस को लेके हो, और उनके कहीं ना कहीं सबके, मुझे लगता है मोस्टली पीपल जिनसे मैं अब तक मिली हूँ, सबके एक हार्ट में रहता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। वंस दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, उनको लगता है मैं भी कुछ करूँ दूसरों के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अपना नेचर से और मदर अर्थ से इतना कुछ ले रहे हैं तो दिस इज द ओनली वे टू पे बैक देयर रेंट, कि हम हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। Return gift. Yeah, they are, nature is gifting us a lot, and we are using everything so yeah, we're just being consumer. We don't think even कि हमने आज एक दिन में अपनी एक दिन की लाइफ को स्पेंड करने के लिए क्या क्या चीजों का यूज लिया है, and we are taking and keep on taking those things selfishly, I will say, sorry. So now let's turn into selfless and let's give something back to the nature, the society. तो मुझे लगता है कि सबको आज अपनी इनकम से, अर्निंग से कुछ पोर्शंस कुछ अच्छे काम के लिए, दूसरों के लिए निकाल के रखने चाहिए। और जरूरी नहीं है इसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाओ, आप अपने पास वालों से भी एक सोशल सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। सबके पास मेड्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, अब वहां से स्टार्ट करो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि सबको मेडिकल एक्सपेंसेस, हेल्थ एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना आप उनको दो, वो भी एक तरह का सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस वही नहीं है जो आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, वो भी अपने आप में सोशल सर्विस है। आप एक या दो जनों को भी पढ़ा दिया आपने, मेड के बच्चों को, आपने उनकी लाइफ बना दी, तो वो भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी सोशल सर्विस है।
अगर हम इस वर्ल्ड को एक हैप्पी प्लेस बनाना है, इग्नोर कर देते हैं व्हाट आई कैन से कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में मेड होती है, उसके 4-5 बच्चे हैं, जस्ट डोंट कंसीडर आई एम एसोसिएटेड विद एनजीओ, जस्ट दैट कि एक घर पे एक मेड थी, सो उसके 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था, सो आई आस्क्ड हिम कि हर की कैसे क्या है, तो कहते वो मेरा बच्चा लड़का पढ़ता है और लड़का नहीं, सो उसके लिए उसको काम ढूंढना था। तो मैंने कहा कितने साल की है, कहते ऐसी ऑफ कोर्स इतनी अच्छी ज्यादा उम्र नहीं थी। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं पढ़ रही है, कहते वो बैंगलोर में हमें देते नहीं है, यू नो। तो मैंने कहा लड़के को दे दिया, लड़के को दे दिया। कि अभी वो कुछ there is a thing called sorry I missed that name, so online also they can register, it's like open source, तो मैंने कहा उस पे कर दो, मैं करती हूँ, मैं help you out, but as you mentioned no कि क्या होता है कि हम फिर अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो अपब्रिंगिंग बनी हुई ना कि when it comes to girl कि ठीक है वो थोड़ा बहुत ठीक है, वो तो काम करेंगे और बॉयज करेंगे, बिल्कुल बॉयज को पढ़ाओ, वो इन्वेस्टमेंट लगता है। so made her aware कि I understand your point, मुझे पता है कि किस लिए है क्या है, but think about it। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा आया कि ये अभी recently there is a girl, what is her name, fashion designer who got I'm so sorry, I'm bad with remembering name. So that girl has said very nice thing कि I have a brother and me, my mummy made me study, मेरे brother को उसने नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो अपना कर लेगा लेकिन मुझे इसको पढ़ाना है, इसको you know stand करना है। So look at that perspective of a woman and other, so this is what I'm talking about कि as you mentioned कि awareness is very important, and especially house help में जो लोग होते हैं, जो डाउन होते हैं, उनको लगता है कि ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलाते हैं, लेकिन चलते रहेंगे, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इन लोगों का थॉट्स और विजन ही नहीं है, हम लोगों को इनको बस थॉट्स देना है, मुझे लगता है। बाकी तो देखो सब ह्यूमंस हैं, सब अपने अपने सब किसी की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, लिमिटेशंस केवल अपने माइंडसेट की होती है। मुझे लगता है कि अगर हम इनको राइट थॉट्स और राइट गाइडेंस देंगे कि आप ऐसा करिए, इसको पढ़ाइए, और अगर वो मानने को तैयार है, हम उनकी अगर अच्छे से माइंड हैंडलिंग कर पाते हैं, तो मुझे लगता है वी कैन मेक अ गुड चेंज। मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैंने निवेदिका, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हम लोगों ने HIV बच्चों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, मैं बोलूंगी मेरे बिगनिंग ईयर्स में, तो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड विद अ वेरी मिनिमल अमाउंट। हम लोगों ने लोगों को बोला था कि आप केवल 12,000 रुपीज का करते हैं एनुअली, 1,000 रुपीज पर मंथ, विच इज लाइक 1 टी-शर्ट या 1 मील, लेस देन दैट। इनफैक्ट अगर हम ज़ारा की टी-शर्ट लेते हैं तो मैंने वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आप 12,000 रुपीज एनुअली दो, एंड जितने इसमें मेंबर्स बनेंगे उनको हम ऐड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो दैट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप 1,000 रुपए दे दो, उसमें अगर एक बच्चा पढ़ लेगा या एक बच्चा रह लेगा, उसका खाना हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, कपड़े हो जाएंगे, तो नोबडी सेज नो। बहुत छोटा अमाउंट है मुझे लगता है 1,000 रुपए महीने का, 12,000 अगर हम एनुअली ले रहे हैं किसी से। और इसी तरह हमने एक पूरा टीम बना के, पूरा एक उसके लिए शेल्टर, सब चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेनिटीज, सब पूरा स्टैंड करा। एंड अगर आपने जैसे बोला कि ये अमाउंट, तो मुझे लग रहा है लोग शॉपिंग में और बाहर जा करके खाने में ही दे देते हैं, उससे कम अगर आप एक दिन का देखो तो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ फीलिंग। एंड कहीं ना कहीं आपने आज किसी के लिए कुछ किया है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो आपके पास आएगा बहुत अच्छे पॉजिटिव रूप में। सक्सेस डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस, मुझे लगता है डिफाइन योर होल कम्युनिटी, जहाँ आप खड़े हो वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आज हम अगर सबको साथ लेके चलेंगे, सबको बढ़ावा देंगे, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस की डेफिनेशन एक अलग होगी। आज सपोजेटली मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू किया, लेकिन अब मुझे मजा आएगा कि मेरा कोई एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके दिखाए, तब मुझे लगता है कि वो मेरी रियल सक्सेस होगी। मैं बन गई, मैंने अपना भला कर लिया, अपना अर्न कर रही हूँ, मैं अपनी लिवलीहुड मेंटेन कर रही हूँ, दैट्स जस्ट वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन अगर मैं वैसे 10 बच्चे खड़े कर देती हूँ जो सोसाइटी में वाकई में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहेंस कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के रेस्पेक्टिव 6 मेंबर्स को मैनेज कर रहे हैं, वो मुझे लगता है एक ज्यादा अच्छी सक्सेस है मेरे लिए। सो एक और पॉइंट कि बिकॉज आई रियली वांट टू ब्रिंग दिस वर्क to CSR's company also. So if you have any message for them, anything you want to specify, which we can maybe add it and specifically we can pitch them. So whatever you want to talk about, you can please. So मुझे लगता है कि
CSRs के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जैसे जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम वर्क करने वाले हैं, द प्रोजेक्ट संग विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. संग मीन्स जैसे मैंने संपूर्ण पोषण स्टार्ट किया था, बट व्हेन आई रीच टू स्लम्स, अगेन आई से कि वी फोकस ऑन द रूट कॉज. तो मुझे लगा उसके ये एक सब्जेक्ट हो गया संपूर्ण पोषण, लेकिन उसके साथ पैरेलली वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं जिन पे हमें वर्क करना पड़ेगा टू कम विद अ प्रॉपर फ्रूटफुल आउटकम. तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो वी केम आउट विद 4 मेजर सब्जेक्ट्स जिसपे हमें अभी वहाँ पे काम करना है. तो वी हैव नेम्ड दिस प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट संग व्हिच कंपोजेस ऑफ संपूर्ण पोषण. A for Atmaja Vandan, the women I was mentioning, the child infanticide and the women sanitation and everything related to women, women discrimination, women empowerment, every subjects which would be related to women would be covered under this Atmaja Vandan. Then third is our Nasha Muktikaran, like we see that there is lot many abuse of this alcohol, drugs, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे यूज होती है. तो वो बच्चों में भी अभी बड़े तो कर ही रहे हैं, बट वो क्या बच्चे भी उनको देख देख के वही अडॉप्ट कर रहे हैं. So to run those campaigns to work on the de-addiction. Then fourth one is Gyan Darpan. So Gyan Darpan here does not means that elementary education only. But definitely we have to give them skills to read and write. Apart from that, we have to give them the right mindset and the right approach to stand on their feet. To I would say to have a approach. क्योंकि सबसे ज्यादा आपने जैसे बताया अभी एग्जाम्पल दिया, लोगों के पास ये अप्रोच ही नहीं है, उनका ये थॉट ही नहीं है कि मुझे लड़कियों को पढ़ाना है या अपने बच्चों को पढ़ाना है. जो इस क्लास में रहते हैं उनको लगता है कि मैं भी लेबर रही हूँ, मेरा बच्चा भी लेबर ही बन के निकलेगा. बट अगर हम उनको समझाएं कि नहीं, आप इन मिनिमलिस्टिक चीजें हैं, अगर आप ये सब भी करोगे तो आप शायद अपने बच्चों को कुछ आगे बढ़ा सकते हो या उनको एक अच्छा ऑक्यूपेशन दिलवा सकते हो. ये जो आपकी चेन ऑफ पावर्टी है उसको ब्रेक कर सकते हो. That's a really great point. Very thoughtful, believe me. Like you have really went to the core. It shows. It shows. Thank you so much. Anything else you want me to ask? Anything we should add here? So I think I just wanted to share that how I came out to this scale. So मतलब मैं अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज को देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगी ये चीजें कैसे स्टार्ट हुई और कैसे एग्जीक्यूट हुई, तब मुझे असली मोटिवेशन कहाँ मिला. तो हम लोग आई थिंक ये ईयर था 2017. मैंने बताया तो मेरा फर्स्ट कैंपेन था रिलेटेड टू HIV चिल्ड्रन. वी स्टार्टेड जस्ट हम लोग जाते थे हर साल एक आउटसाइडर की तरह, जैसे सब करते हैं, हम जाके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाते थे. देन व्हाट हैपेंड 2017, इट चेंज आवर होल, मतलब मेरा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया था उसने. मुझे सोचने पे वो कर दिया था कि अब मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा घुस के ही काम करना है. तो मैं बोलूंगी कि 2017 में क्योंकि वो बच्चे HIV से सफर थे, तो दे वर लिविंग इन दिस NRI कॉलोनी ऑफ जगतपुरा. वहां जाके हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. ईच ईयर वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ऑन 4th of Feb. हम उनका एक कंसोलिडेटेड सारे हमारे बच्चों का एक ही बर्थडे सेलिब्रेट करते थे. तो वी वर डूइंग इट दैट इन 2017. एंड व्हाट हैपेंड, some of our neighbors, we were enjoying, we were having cakes, we were having party, we were dancing, we were having full fun at that point of time. And then after some 5-10 minutes, some neighbor came to us. They said ki these children cannot live here anymore, such celebrations are not allowed for such children, so you have to take them out of this premises immediately. So that moment was really, जो आप चैलेंज की बात कर रहे थे, ये मोमेंट था मेरे लिए चैलेंजिंग. इनका मतलब हम तो सोच रहे थे कि इन बच्चों को हमें एक बहुत हैपनिंग और अच्छी लाइफ देनी है. नाउ व्हाट हैपेंड, ये लोग तो मतलब इनको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. इनफैक्ट दे डोंट वांट टू गिव देयर होम्स ऑन रेंट इन बच्चों को रहने के लिए. तो दैट मोमेंट वी थॉट कि वी टुक अ ओथ कि हमें इन बच्चों को अपना एक शेल्टर देना है, इनका एक होम देना है, जिससे इन लोगों को कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई गेस्ट ट्रीटमेंट या इस तरह से कभी भी मतलब नेगेटिव ट्रीटमेंट नहीं फेस करना पड़े, मैं बोलूँगी. तो that day we took a oath. फिर हमारे जैन महाराज थे, we approached them very next day कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं, now they are living in such situation, और अभी तो उनको निकालने के लिए बोल दिया है, तो what we will do. मतलब ऐसा लग रहा है तो उनको घर से ही निकाल दिया, तो कहाँ लेके जाए उन बच्चों को, रातों रात मतलब होमलेस हो गए बच्चे. तो हमने उनको बोला कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हम उन बच्चों के लिए एक घर बनाए. तो दे रियली मोटिवेटेड अस, पर उन्होंने बोला कि ये चैलेंजेस हैं, कैसे मैनेज करोगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे चीजें होंगी. तो मतलब वहां पे बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिवनेस थी कि चीजें हो जाएंगी. तो मैं बोलूंगी वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ में जब मैंने असली में सोचा था कि ये क्या हो गया, जिन बच्चों को हम इतना अटैचमेंट रखते हैं, जिनसे इतना सोचते हैं, वो
दे आर होमलेस। तो मेरे को मतलब खुद को नींद नहीं आई कि मतलब कहाँ रहेंगे वो बच्चे, कहाँ उनके छत से सर से छत चली गई थी। तो मतलब मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहां पे इतने लोग खड़े थे, बट आई फेल्ट कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। मैं उनको ऐसे नहीं रहने दे सकती। सोसाइटी को तो हम बाद में समझाएंगे कि क्या डिजीज है, क्या ये कम्युनिकेबल है या नहीं है, वो सब चीजें तो पैरेलली चलती रहेगी, बट अभी मेरी जो प्रायोरिटी थी उन बच्चों के लिए एक अपना एक घर बनाने की थी। तो भी जस्ट मैं थी, मेरे साथ कुछ 4-5 लोग और जुड़ गए थे, वो भी मेरी तरह ही थोड़े क्रेजी होंगे शायद। तो वी थॉट कि नहीं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों के लिए घर बनाना। सो वी स्टार्टेड। फिर हमने मतलब पूरा जो टीम थी, हम लोगों ने बहुत हाथ पे मारी। किसी के कोई आईएएस से जैक थी, किसी किसी की, तो वी टुक जेडीए से हमें एक लैंड मिल गया था समहाउ। तो वहां पे जाके हमें एक साई ऑफ रिलीफ आया कि हाँ चलो हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो वी गॉट दैट लैंड। लेकिन अगेन द लैंड वाज ऑल एम्प्टी, ब्लैंक था वो पूरा बंजर। तो पूरा स्क्रैच से हमें लगा कभी लाइफ में कंस्ट्रक्शन नहीं किया, चीजें नहीं करी, क्या होगा कैसे होगा कुछ, ना तो टेक्निकल नो हाउ पता है, ना फंड्स है, ना कोई लोग है बड़े, डोंट नो कैसे चीजें होंगी। बट हमने कहा कि करनी तो है, अब सोचा है तो कुछ तो भगवान ने अगर थॉट दिया है माइंड में, तो कुछ तो भी उनका मोटिव है इसके पीछे। देन हम लोगों ने स्टार्ट करवाया कंस्ट्रक्शन। काफी लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे, कोई प्लम्बर्स, कोई अगर मैं बोलूँ मार्बल सेलर्स, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। और मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे डिस्काउंट्स भी दिए हम लोगों के इस काम में। किसी ने तो ऐसे करा कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक दिन मैं कुछ प्लम्बिंग का सामान लेने गई थी, तो मैंने उनसे सामान परचेज किया, एज अ टेस्ट उन्होंने दूसरे हैंड से वो चेक निकाल के दे दिए डोनेशन में कि ये सामान पूरा फ्री है। तो मतलब these kind of experiences make you strong, motivated, और आपको ये सिखाते हैं कि you are going on the right path। मतलब आपको वो डगमगाने वाली स्टेज भी आती है ना, उससे पहले आके पकड़ लेते हैं कि नहीं तुम्हें हिलना नहीं है, हम कर देंगे सब, डोंट वरी। तो मतलब डॉट्स कहाँ से कनेक्ट होते गए, चीजें एग्जीक्यूट होती गई, लोग मिलते गए। एंड उसके बाद फिर कोविड आ गया, अगेन आवर वर्क स्टॉप्ड, क्योंकि लेबर्स भी काम चले गए थे। बट फिर वापस से कोविड का थोड़ा कम हुआ वेव, लेबर्स केम बैक, थिंग्स हैपन। और मतलब मैं क्या बताऊं कि हम लोगों ने सोचा था हम उनको कोई 2 कमरों का मकान बना के देंगे, बट थिंग्स टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुली। उनके लिए सारी अमेनिटीज, मतलब क्या नहीं है आज मैं उस घर में देखूं तो उनके लिए एक प्रॉपर आज उनके लिए कंप्यूटर मशीन्स हैं, उनके लिए रिक्रिएशन रूम है बच्चों के लिए, मतलब प्रॉपर एक किचन है एकदम हाइजीनिक। मतलब I will share you few images and video of that place। तो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि when there is some क्या बोलूं मैं, मतलब there is some universal power which is behind me, which is working for all those things। बहुत अपने आप में मतलब चीज जो निकल कर आई, तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा वो घर बना। उन बच्चों को जिस दिन वहां पे हमने इनॉग्रेशन करा के एंटर कराया, तब जाके हम लोग को मतलब हम लोग चैन से बैठे, ऐसा लगता है ना बेटी की शादी करके बैठते हैं, ऐसे वाली फीलिंग थी उस दिन। बट दिस ऑल हैपेंड ऑन ऑटो मोड। चीजें बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो गई। नो मैटर, चैलेंजेस आए, हर्डल्स आए, बहुत चीजें हुई। कई बार सीलन आ गई घर में, वापस कंस्ट्रक्शन कराया, बहुत चीजें हुई। बट एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स ऐसे निकल के आई, तो मुझे लगता है कि मतलब रुकना नहीं चाहिए छोटी छोटी हर्डल्स और चैलेंजेस से। इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, अगर आपके दिमाग में कोई गोल आया ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है भगवान का, तो उसको आप कराओ, उसको में चलते बनो, सही लोगों को जोड़ो साथ में, और चीजें हो जाएगी। मैं अभी भी यही बोलूंगी, मतलब आई शेयर यू द पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ आवर होम। और जब वहां पे बैठते हैं जाते, तो ऐसा लगता है ये हमारा अपना घर है, ये हमारी फैमिली है। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। मेरा नाम गिरवीत जैन, मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार जैन है। मैंने इसी साल कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं। मेरी 12वीं में 81% बनी है। मुझे अब बी फार्मा करना था। इसके लिए श्री अंजू देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने हमारी बहुत बहुत सहायता की। इसके लिए शायद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना पारिक है। मैं यावी की मदर हूँ। मैं पिछले 1 साल से अंजू देवी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, अंजलि जी से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई, तब ये अंजलि जी मुझसे आकर मिली। अंजू देवी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से इन्होंने मेरी यावी की 12th की एजुकेशन। हम बहुत आभारी हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से, ये ट्रस्ट के माध्यम से हमें सहयोग मिल रहा है और गरीब बच्चों को मदद मिल रही है।